तो आवाज आ रही है इधर? ठीक है, तो इधर म्यूट, अपना बेशक माइक म्यूट कर दें वैसे, क्योंकि इधर जूम पे बात हो रही है। माइक जूम पे माइक म्यूट कर दें। हेलो, संजीत आपको आवाज आ रही है मेरी जूम पे? संजीत आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। ठीक, मेरी ठीक आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस आप, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ, ठीक आ रही है। ठीक है, चलिए।
Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Amjad Abbas and I am working as Associate Professor in the Department of Plant Pathology, University of Agriculture, Faisalabad. Today we have organized a session regarding use of AI and big data and various other applications in the field of agriculture. So I will give a brief view about agriculture and later I will request Dr. Ali Razanjum. He is a leading data scientist and working in DICE Analytics, Islamabad, and he will elaborate various uses of data science in our agriculture field, and in future how we can integrate and take useful insight from data science for better data analytics in agriculture. And in this way, we will use these data sources to make our agriculture profitability to much higher level and to feed more hunger people. So I will start. The complex interactions across different domains is where the challenge and opportunities exist. It means the data science and agriculture, they're different things, but when they get together, it will create enormous results. What is the objective? In agriculture, we have a single objective to get more food and for feeding a number of peoples. As the population of Pakistan as well as whole world is increasing, so we need to increase our production. We cannot increase our agricultural land, but at the same time, the productivity can be enhanced to much higher levels. So single objective is feeding a fast growing population. And now what are the possible uses of AI and big data in agriculture? So I will start with the field of plant pathology. It's a diverse field. In plant pathology, we are working with pathogens. Pathogens are small germs which infect crops and yield losses occur. So for the identification of pathogens, we use different techniques. One is genome sequencing. We isolate whole DNA and send for sequencing. And this sequencing machine produces a lot of data. This data is enormous and it contains a lot of information. But for taking into account that this information, how to acquire this information and how we can use this information to get a better understanding of pathogens. So for that, we need data science. This is one application that after sequencing, a lot of data is produced, and to work with that data, what we can do, which type of tools we should use, and this is only possible with the help of some expert. This is the working of Department of Plant Pathology. Like we work on diseases. In first phase, we go to the fields and see which crop is sick and how this sickness can be identified. And at later stages, control is our last objective of this trip. So with the help of AI and machine learning, definitely I will ask Sarali Razanjum how disease assessment can be done in a good way as well as diagnostic and control of these diseases. For the control of diseases, usually spray and pesticide spray is the only option which is fruitful. But pesticides is used in unjudicious way. Sometimes we spray a lot of pesticides, and this use of pesticides, we just monitor some of the plants and take into account that this crop is sick, and ultimately we go
for the spray on the whole crop. But this is making a lot of plants which are not sick. We are putting effort on the plants which are healthy. So with the help of AI, how can pesticide usage is optimized and profits can be increased? This will be one of the key questions. And the remaining thing is the ethics of pesticides. Why we are using a lot of pesticide, and this pesticide is making our environment and soil somehow polluted, and this pollution ultimately comes into our body. But with the help of some machines and data science, we can control overuse of pesticide. So this will be also a very good question, which could be answered with the help of data scientists and artificial intelligence. Similarly, farm equipment and automation is another task which will replace labor in future with the help of some AI automized machines. And the other is managing supply chain issue. If there is some issue in the supply chain, food, mostly we know 1/3 of the food is lost or wasted every year due to pathogens or due to insufficient storage condition. So this will be an important question, that how AI in big data can help us in managing our supply chains, especially which are related to key food element like supply chain which are related to sugar industry or which are related to wheat industry. Yeah, where we put a lot of wheat trucks and ultimately get processed food. But during this course, some of the food, not some, a lot of food like 30% is lost. And maybe AI will help us how we can overcome this issue. And the other is crop zone area estimation. We know in Punjab that almost uh, in almost Punjab area we sow wheat crop. Wheat is the staple food and it's sown in all Punjab. And with the help of AI, the other tools like satellite data, and there are so many types from where we can get this data, and which type of crop is in the field and how and at which stage. This will be helpful to fix a particular date for an area, that for this area this date is good for sowing or harvesting a particular crop. And the other is normalized difference vegetation index. Yeah, in this picture you can see there are two fields. One is on the left side and other is on the right side. On the right side we can see there is difference in the color. This color difference shows that these plants they are sick. So with the help of automized machine like unmanned vehicles like drones, they can map this crop, and they will tell us that this area is particularly infected with the pathogen, and maybe this area should be addressed instead of whole wheat field. So in this way we can only go to the sick plants through these aerial aid, and in this way a lot of effort, a lot of manpower, and cost benefits. Yeah, we will get a lot of cost reduction in this way, that the only this is so much targeted. And we can also identify the diseases with the help of remote sensing technology. Diseases in the field or in any large area can be identified. We know we have already many departments which are working for identification of diseases, and overall their duty is survey. And with the help of these slide images, we can basically tell that which crop is infected and what are the symptoms. And on the basis of that symptom, we can go for the use of some AI technique. So it will reduce cost in another way. And the soil properties could also be
addressed in some way if we put a lot of data to the machines and we wait for analysis and prediction. Then in this way, definitely yield could be enhanced. And another important use could be flood impact. We know every year we have a lot of fields which are lost due to flood. So majority of agriculture area is damaged due to this flood. So satellite remote sensing provides significant information through the use of satellite images along with the ground-based data. And this data could be used to show particular crops which are least affected by this flood. And one of the important use of unmanned aerial vehicles for damage assessment. We can assess the damage that either this damage is due to diseases or insects or something else like some animal. So these drone-based data could be assessed, and these images, which could be in thousands or even hundred of thousands, could be assessed and analyzed. And with this analysis, in future, we can we can go with something that this particular area is under attack of some like a disease or insect. So assessment would be more easy, and in this way we can predict future of our crop. These are possible outcomes. How we can use big data in agriculture, like integration of artificial intelligence with disease and field crops, precise and early assessment of the disease. And we can even assess the disease in future. Glassware greenhouse automation, precise and targeted pesticide application, and prediction model. Definitely, this prediction model is very common and famous in case of diseases that we can tell on the basis of past data that particular disease will come in this field, and uh, and before time we can manage this threat. And ultimately we would have trained agri manpower. If some of the people from agriculture, they get training from AI and like institute. So for that institute, we requested DICE Analytics, which is a famous and renowned institute in Islamabad, and they are providing and training manpower. And ultimately, selection criteria for some crops could also be could also, I mean, there should be way that our crops, there are a lot of genetic diversity, and with the help of AI, we can explore this genetic diversity. So this was a small talk from me about agriculture and some of the questions which are present in agriculture, which are, I mean, hanging in our minds that how this AI and big data could be used in agriculture. So for that, first of all, I'm very thankful to all of you for your participation. And Ali Ranjan is leading data scientist working in AI and data science field, and he could be a best choice to answer most of my questions and many in your mind. So feel free at the end of this talk, you can ask him questions as well. And I will tell that this is a bright chance, a good chance for all of us to get basic knowledge. And my experience is that recently I have completed a course from this DICE Analytics. This was an extensive course of 2 months. Actually, it's 8 week and 2 classes every day. Actually, this is totally a hand. You should have a good practice as well. This is not just a theoretical course and you are coming and getting some theory. Ultimately, they provide some tools. With the help of that tools, basic data like statistics, which is used in our field, becomes more easy. So I will request all of you to at least think about that course.
And Sir Ali, please uh, introduce yourself and give a good view of AI and big data. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Let me share my screen. Um, आई गेस मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी। सरमजीत, कैन यू Yes. सी माई स्क्रीन? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई गेस अहमद साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। I think we should take questions at the end. That will be more feasible. डन सर, थैंक यू। अच्छा जी, डाइस एनालिटिक्स के बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन जो सरमजद ने पहले दे दिया हुआ है, ठीक है। लाइक इट्स इस्लामाबाद स्टार्टअप, वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस बैक इन 2017। तो अभी इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4 years वी स्टार्टेड विद ट्रेनिंग, बट अभी जो है हम लाइक वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग रिक्रूटमेंट सर्विसेज अलॉन्ग विद कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी के अंदर जो अभी तक हमने सबसे बड़ा कह लें कि जो प्रोजेक्ट विन किया इज रिलेटेड टू कोविड, कि कोविड की जितनी भी रिपोर्टिंग थी एनसीओसी के क्रॉस, या जितनी भी प्लानिंग थी, डेटा ड्रिवन प्लानिंग थी, कोविड के दिनों में वो सारी डाइस एनालिटिक्स ने की थी। तो जितने भी लाइक असद उमर जो हेड थे, उन्होंने जितनी प्लानिंग की वो सारी हमारी डेटा ओरिएंटेड टूल्स को देख के की। एनडीएमए के अंदर जितनी भी प्रोक्योरमेंट हुई है, या कह लें कि जितनी भी चीज़ों को देखा गया, वो सारा डाइस एनालिटिक्स के टूल्स या सर्विसेज के थ्रू देखा गया। जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन एट माई एंड के मेरा नाम अली अंजुम है। तो मैं आई बीन वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 10+ years। और जो कोर फोकस एरिया रहा है मेरा, वो ये यही रहा है कि किस तरह हम डेटा को यूज़ करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, या कह लें कि किस तरह हम उनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको हम कर सकते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ डे जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या तो नए रेवेन्यू की फॉर्म में बेनिफिट हो, या फिर रिड्यूस एक्सपेंसेस की फॉर्म में, इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी की फॉर्म में आउटपुट हो। ठीक है। अच्छा, आज का जो सेशन था डेट वाज रिलेटेड टू लाइक के एआई और बिग डेटा जो है किस तरह एग्रीकल्चर को चेंज कर रहा है। सो इस पे जाने से पहले हम एक शॉर्ट सी वीडियो देखते हैं जिसके ऊपर हम अपनी स्टोरी लाइन बिल्ड करेंगे, और फिर उससे आगे चीजें लेके चलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज का सेशन है वो इस चीज पे ज्यादा फोकस्ड होगा कि नंबर वन ये चीज कि एआई जो है वो उसके यूज केसेस डिफरेंट एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, नंबर वन। और सेकंड, एक मिसकंसेप्शन के, अच्छा एआई की जो फील्ड है ना, इट्स ओनली रिलेटेड टू टेक्निकल पीपल, या जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं या जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड है। ऐसा नहीं है। हम ये एक मिसकंसेप्शन भी क्लियर करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। एनीवन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन डू डेटा साइंस, नंबर वन। और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि क्या हर बंदे के लिए को ये करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो हम ये कंसेप्ट एक बैकग्राउंड भी बिल्डअप करेंगे कि एक्चुअली डाउन द रोड आप जिस मर्जी फील्ड से, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप लेट्स सपोज पुलिस के अंदर हैं, आप कह लें कि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बैठे हुए हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बैठे हुए हैं, डेटा साइंस एक ऐसी डोमेन है जिसके लिए आपको अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, इनरिस्पेक्टिव ऑफ इन डोमेन, जिस मर्जी डोमेन से आप हैं। ठीक है। ये चीज हम क्लियर करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अभी हम चलते हैं, एक वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो को चलाने के लिए मैं If you want to feed the world in 2050, then वीडियो और आवाज सर आ रही है? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। ये वीडियो है जिसकी बेस पे ना हम अपने ग्राउंड बिल्ड करेंगे आज के सेशन की, क्या चीजें हैं और इसके मुताबिक क्या चीजें चलती हैं। तो ये वीडियो है, और देखिएगा इसके एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको मैं दोबारा हाईलाइट भी करूंगा। if you want to feed the world in 2050, then the next 40 years we need to produce the same amount of food as we did over the last 8,000 years. And that gives a little bit an indication of the pressure on the food system. We just face a huge challenge with a growing population, with a change in consumption behavior, with the climate crisis. How do you secure your food production? The real secret is the sustainable production.
It should be with less inputs, less fertilizer, less pesticides, less water. It needs to be sustainable. Otherwise, we will destroy our planet. Eh? The security of the food system is one of the world's most pressing challenges. But the story of how this small country became an unexpected food superpower might just have some answers for how we tackle it. Consider this. If everyone on Earth ate the diet of the average American, that would require all the habitable land to be used for agriculture, and we'd still be 38% short. And that's right now. What do we do when there are 2 billion more people? Well, the key is more exciting than it sounds, and that's efficiency. Basically, how do we produce a lot more on the land we're already using and do it using a lot fewer natural resources? When it comes to sustainable agriculture, one country has seemed to crack the code. Bolstered by a national commitment to produce twice the amount of food with half the resources, the Netherlands has become the world's #2 food exporter. There was a very close collaboration between the government, science organizations, and the industry. And they started out of a common interest. So they say, okay, we want to go for sustainable production, but everybody was aligned. Everyone involved in the system was aligned and embraced innovation to reach that shared goal, and that has driven efficiency on a level unmatched anywhere else in the world. If there's one place that approach is most clear, it's in their unrivaled greenhouse growing operations. There's a very nice example about tomato, which really gives a good insight in how we want to produce our food in a sustainable way. So if you produce tomatoes in an open field situation in Spain, then you will end up at the end of the growing season with 4 kilograms per square meter. If you do this in a high-tech greenhouse in the Netherlands at the moment, you will end up with 80 kilograms per square meter, which is 20 times more. But the best part of the story is that the 80 kilograms of tomatoes, we do it with 4 times less water compared to an open field situation. And water is one of the big challenges that we face. Just had a cup of coffee. Do you know how many liters of water were needed to produce that cup of coffee? Rough guess. 10. 150. So high technology offers really a possibility of producing a lot of food per square meter in a sustainable way. The Dutch lead the world in tomato yield while using a fraction of the water that other countries use. But it's not just tomatoes. Measured by yield per square mile, they're the world leader in the production of chilies and green peppers and cucumbers. Number 5 for potatoes, onions, and carrots. The list goes on. But the bottom line is they've been able to get so much out of so little. If we are able to produce 80 times more with 4 times less water, that's great. That's great news, I think. Most people know that greenhouses allow a grower to tweak every little thing. But the Netherlands is taking it to the next level. They've perfected the greenhouse as the ideal environment to continuously test and implement all kinds of ways to optimize growth. From things as simple as testing what hues of LED lights can increase pest resistance and improve nutritional value, to things as crazy as moth-killing drones. So we're at the moment we don't have any products who can control actually the moths, and finally they will produce caterpillars, and those caterpillars can do a lot of harm to many different crops. Well, that drone is able to detect the moth, also to see how it's flying, and then with its wings, propellers, it will crush actually the moth. Wow. There's a relentless drive towards innovation to create better and more efficient growing techniques. They've even started taking the human touch completely out of it. Some of the latest tech relies on AI to learn plant behavior and constantly adjust conditions without any input from a farmer. For example, what we're testing in this compartment is a climate computer. So we have different sensors, and it's actually, we measure the plant activity. And based on the plant activity, the computer is actually controlling the whole climate by itself. Ultimately, the key to solving our global food challenge isn't just in relying on super efficient food producers to carry the weight for everyone else. It's learning from and adopting that technology. At the World Horti Center, you see that effort firsthand in an ongoing experiment. They've built basically a greenhouse within a greenhouse. Inside the larger structure, they're able to replicate any climate on Earth to figure out what modifications need to be made to realize the same yields they're getting in the Netherlands and any other country on Earth. We have a
cooperative project going on with Colombia, and we can in fact we can emulate the current climate conditions in Colombia, put their crop in and see how crop behaves under the circumstances that we have in Colombia. We can totally flip the seasons around. We can make it a sunny day on Christmas. We can close the curtains on a sunny day and make it completely dark. I think in the long run, the future of the Netherlands should not be to be a producer for the rest of the world. We should be a developer for the rest of the world. We are the country that will export our knowledge on creating production facilities all over the world. Innovation starts really by bringing all these networks together. In the world we live nowadays, you need to link up with other people. You can't do it on your own. We need to produce more, we need to do it with less inputs, and we need to do it better. Thanks for watching. If you like the future of food, ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी जस्ट टू बिल्ड अ स्टोरी लाइन के व्हेन वी टॉक अबाउट एआई या डेटा साइंस, ठीक है, इन एग्रीकल्चर, तो हाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूज केसेस हैं, बट इन यूज केसेस को मैं एक्सप्लेन करने से पहले जो चीज़ पे जाऊंगा वो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है, देन वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर जो सक्सेस है वो मेजर की जाएगी डाउन द रोड एफिशिएंसी से, कि आप कितने एफिशिएंट हैं, क्योंकि रिसोर्सेज और टाइम जो एग्रीकल्चर के अंदर वो बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल ये कि आपके पास लिमिटेड स्पेस है चीज़ों को ग्रो करने के लिए। फिर उसके बाद अगला बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज का, कि वेल एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो इस डोमेन के अंदर काफ़ी कम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी कल्चर के अंदर इंजीनियर या डॉक्टर बनना पसंद किया जाता है, बट एक कल्चरल बैकग्राउंड में जाना जो है वो शायद इतना सोशली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, डिस्पाइट कि शायद वो बाकी फील्ड की निस्बत ज़्यादा डाउन द रोड जो है वो ज़्यादा रिटर्निंग हो या ज़्यादा आरओई ओरिएंटेड हो एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। तो इट्स इन एग्रीकल्चर इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। हमने कम रिसोर्सेज और को यूज़ करते हुए कम टाइम के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ानी है, ठीक है। उस प्रोडक्टिविटी के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3-4 पिलर्स हैं जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि सबसे पहले ये कि किस तरह हम सैटेलाइट इमेजेस को यूज करते हुए, ठीक है, किसी भी एरिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, या कह लें कि आने वाले दिनों के अंदर उस एरिया में जो क्रॉप्स पे इम्पैक्ट है उसको हम प्रिडिक्ट करके समहाउ चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। देन इन फील्ड मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल ये कि अभी जिस तरह लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर लेट्स सपोज ज़मीनें हैं, कह लें कि 400 एकड़ की, ठीक है, और मैंने उनको मॉनिटर करना है, तो हो सकता है कि अगर मैं उनको यूजिंग ह्यूमंस लाइक अपने फील्ड पे बंदे रख के मॉनिटर करवाना शुरू करूं, तो मुझे जो है वो लेट्स सपोज 4000 लोगों की वर्कफोर्स चाहिए होगी, ठीक है। तो किस तरह हमें एआई जो है वो बाय यूजिंग ओनली 1 to 2 पीपल, ठीक है, विद एन एडिशनल टेक्नोलॉजी यूजेज, हम किस तरह उस फील्ड को जो है वो इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। देन फिर अगली चीज जो है वो कोर आती है कि फॉर एग्जांपल आपकी एआई के अंदर, या कह लें कि क्रॉप या सॉइल हेल्थ को हम किस तरह असेस कर सकते हैं प्योरली बेस्ड ऑन यूजिंग एआई और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड थिंग्स, ठीक है। देन रोबोटिक्स की फील्ड आ जाती है कि फर्दर जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अपने हेड ऑफिस में बैठे हुए सेटेलाइट से इमेजेस कर रहे हैं, इन फील्ड मॉनिटरिंग या ड्रोन्स के थ्रू हम फील्ड्स की जितने भी रिलेटिव आइटम्स हैं वो हम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सॉइल हेल्थ, और इन चीज़ों के बेस पे हम किस तरह ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट रोबोट्स बना सकते हैं जो डाउन द रोड विद इन फील्ड सिटिंग देयर एंड देन जो है ना वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल ये है कि अगर मुझे लग गया कि जब लगे कि अच्छा मेरी क्रॉप के अंदर इस एरिया में, ठीक है, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर ये इंसेक्ट्स जो है वो हमला कर रहे हैं, ठीक है, तो रेदर देन वेटिंग फॉर नेक्स्ट 6 मंथ या 12 मंथ्स टू वेट फॉर द आउटपुट, ठीक है, तो आई विल ट्राई कि यार मैं फॉर एग्जांपल देयर एंड देन जो है वो इंसेक्ट से रिलेटेड जो है वो स्प्रे कर सकूं, ठीक है, और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकूं। अच्छा, ये तो हो गया ओवरऑल सिनेरियो जिसके अंदर हम मल्टीपल चीजें आती हैं, बट ये चीजें अनेबल करना इन विद इन एआई फील्ड जो है ना वो कह लें इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट समथिंग कि जो कह लें कि विद इन अ डे, विद इन आवर, विद इन मंथ्स अनेबल हो जाएंगी चीजें, ठीक, बल्कि डाउन द रोड, जिस अभी हमने एग्जांपल दी नीदरलैंड की एग्जांपल, तो दे हैव स्पेंट गुड इयर्स, गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, टू रीच टू अ कंक्लूजन जहाँ पे वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल उन्होंने
अपने टमाटोज की जो है वो आप कह लें कि प्रोडक्टिविटी बताई कि वो ऑलमोस्ट दे वर 20 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मेरी आवाज सही आ रही है सबको? जी सर, ठीक आ रही है। ठीक है। तो किस तरह जो है ना प्रोडक्टिविटी को हम बाय एक्स फोल्ड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स फोल्ड की इंक्रीज है प्रोडक्टिविटी की, दिस इज नॉट समथिंग कि जो क्विकली आ जाएगी। ठीक है, या कह लें कि एक जस्ट छोटा सा एक एक ट्रेनिंग होगी और हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी, या कह लें कि बस हम कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स खरीद के लगा देंगे और चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। रेदर देन इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम जिसके अंदर ना हमें चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर अगर मैं देखूं तो जो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास वो है क्रॉप से सेंसर्स के थ्रू डेटा गेट करना। ठीक है, ये वाली चीज हम किस तरह रिमोट सेंसिंग पे काम कर सकते हैं। ठीक है, जब रिमोट सेंसिंग के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आ सकते हैं, हम यूजिंग ड्रोन्स डेटा कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस कर सकते हैं, या हम कोई और रोबोटिक्स बना दें जिसके थ्रू डेटा कलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद अगली चीज आती है कि फॉर एग्जांपल हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, उस डेटा को हम किसी प्लेटफॉर्म कह लें, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह जो है ना वो डेटा अपने पास स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो ये वाले दो एलिमेंट्स हैं कि जो कलेक्टेड डेटा है, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज हम किस तरह उस डेटा को अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर इम्बेड कर सकते हैं, ताकि लेट्स सपोज मेरे पास अभी जिस तरह ये है कि अभी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास एक फील्ड है, अभी उसका ना आपने टेम्परेचर मॉनिटर करना है। ठीक है, अभी क्या है कि अगर आप कोई कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सोल्यूशन नहीं इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप हो सकता है कि दिन के अंदर सिर्फ एक रीडिंग ले सकें उस एरिया की, या मैक्सिमम भी हो सका तो 4 5 या 6 रीडिंग्स ले लेंगे कि हर घंटे बाद एक रीडिंग ले लो। ठीक है, व्हाट अबाउट कि अगर हम इस लेवल पे जाना चाहते हैं कि यार हर सेकंड के बाद मुझे जो है ना लेट्स सपोज 12:00 01 सेकंड पे भी उसकी चाहिए, 02 सेकंड पे भी चाहिए, 03 सेकंड पे चाहिए, 04 सेकंड पे चाहिए, 05 सेकंड पे चाहिए, देन सो ऑन सेकंड बाय सेकंड मुझे टेम्परेचर की डिटेल चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है ना अगर हम जब प्लेटफॉर्म और डेटा बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये चीजें हमें तब अनेबल होंगी हमारे पास। ठीक है, ये चीजें अनेबल हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट चीज है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे मेरे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपने जिस तरह देखा कि जो पहले हमने वीडियो देखी थी ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, कि अगर मुझे पता लग गया कि यार मेरी इस फील्ड का या लेट्स सपोज मेरी ग्रीन फार्म का जो टेम्परेचर है वो लेट्स सपोज एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया है, ठीक है, मे बी मैं वहां पे कोई एसी या कुछ और कूलेंट्स वगैरह चला के टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकूं। ठीक है, या इस तरह की और चीजें हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लग गया कि यार मेरी इस पूरी फील्ड के अंदर से ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि इंसेक्ट्स ने ना अपना अटैक कर दिया हुआ है। ठीक है, तो रेदर देन कि मैं वेट करूं अगले 4 दिन 5 दिन कि यार मैं इसका अभी थोड़ा और बढ़ जाए तब मैं जाके कोई एक्टिविटी लूंगा, उसके बाद उससे पहले ही मैं कुछ ऑटोमेटेड वे में ये कर सकूं, एटलीस्ट मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि यार इस एरिया में इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया हुआ है, ताकि मैं अपनी स्ट्रेटजी जल्दी बना सकूं जो यहाँ से डिसीजंस इस चीज से रिलेटेड फील्ड है। ठीक, या कह लें कि मुझे लग रहा है कि यार इस मेरे पूरे एरिया के अंदर से यहाँ पे इंसेक्ट्स ने अटैक किया हुआ है, और जो ये वाला एरिया है ना यहाँ पे लेट्स सपोज सॉइल के अंदर मुझे पानी का मिक्सचर नहीं प्रॉपर मिल रहा। ठीक है, मे बी दिस इज एन अदर एक्शनेबिलिटी कि जहाँ से मैं चीजें इम्प्रूव कर सकता हूँ कि अच्छा यार नेक्स्ट टाइम जब मेरा बंदा या जो उसका गार्डनर है उस एरिया का वो जाएगा तो उसने यहाँ पे रिलेटिवली पानी ज्यादा देना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें डिसीजन से रिलेटेड है, क्या डिसीजन हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट जो चीज है ना वो है एक्चुएशन, या कह लें कि एक किस्म की फीडबैक लूप है कि जब हमने चीजें चेंज की हैं, ठीक है, चीजें किस तरह चेंज हुई हैं। हम एक्चुएशन के बारे में थोड़ा आगे जाके भी देखते हैं, बट अभी आप ये चीज क्लियर करें कि ये जो एआई की जर्नी है या कह लें कि जो नीदरलैंड वाली भी हमने वीडियो देखी है, दिस इज नॉट समथिंग जो क्विकली इंप्लीमेंट हो जाएगी, इट विल टेक टाइम बट इट्स अ रियलिटी। ठीक है, while sitting in Pakistan, we have to think about these things कि यार ये चीजें despite you are from any field, these things are going to be reality। ठीक है, particularly in agriculture के
कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली फोकस जो है वो ये है कि हम किस तरह एग्रीकल्चर के कम रिसोर्सेज यूज करते हुए अपनी यील्ड और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और उसके अंदर जो मेजर पिलर्स जिन पे काम होता है वो ये सारे पिलर्स हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग से लेके डेटा स्टोरेज से लेके जो एआई में जो लैग है, ठीक है, और देन उसके बाद रोबोटिक्स और एक्चुएशन की लैग है, ठीक है, इस पे काम होता है। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जो मैंने बताया कि ये तो थे हाई लेवल यूज केसेस, ठीक है। अब सबसे बड़ा इशू जो है, फॉर एग्जांपल जब एआई की बात होती है या डेटा साइंस की बात होती है, ठीक है, तो इशू ये है कि जो है ना क्या कहते हैं उसे, ये समझा जाता है कि जो एआई की फील्ड है ना, इट्स ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये सबसे बड़ा कह लें कि इस फील्ड के साथ एक मिसकंसेप्शन ओरिजिनेट होती जा रही है, या कह लें कि लोग जो है वो इस चीज को इस तरह परसीव करना शुरू हो गए हैं, जिस वजह से इस फील्ड के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हो पा रही, ठीक है। पर्टिकुलरली इन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि अच्छा यार ये डोमेन तो कंप्यूटर साइंस के लोगों की है, ऑल दो आई एक्सेप्ट की रियलिटी है, या ये आने वाली चीजों में मुझे सीखनी पड़ेगी, बट स्टिल लाइक दिस इज नॉट अ फील्ड फॉर मी, ठीक है। इस कंसेप्शन को भी हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लाइक अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप सबके माइक्स जो है वो मैंने अनम्यूट कर दिए हैं, तो आप बात कर सकते हैं, अपनी इनपुट दे सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप में से कोई बंदा बताएगा कि व्हेन यू थिंक अबाउट एआई या डेटा साइंस, आप लोगों के माइंड में क्या आता है? कोई बंदा इनपुट देना चाहे? आप सबके माइक्स जो है वो अनम्यूटेड है, यू कैन टॉक, या चैट विंडो में लिख दें इंस्पेक्शन ऑफ एनीथिंग सैयद नकवी। कोई और क्वेश्चन, कोई और इनपुट? ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। देखिए, जब बात आती है ना एआई की, ठीक है, तो वी टॉक अबाउट वन थिंग जिसको कह लें कि बिल्कुल इजी वे में हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इट्स लाइक हम किस तरह आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली जो है इंटेलिजेंस जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं विद इन कंप्यूटर्स। ये है हमारी एआई की फील्ड, जिसको हम एआई कहते हैं। उसमें हम ये कहते हैं कि यार किसी तरह कि हम किस तरह जो है वो इंटेलिजेंस को इंड्यूस कर सकते हैं विद इन कंप्यूटर्स। ये जो है ना, ये एआई की फील्ड है। अच्छा, अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडक्शन है, ये होती है प्योरली डेटा की बेस पे। ये हम कह लें कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम किसी भी मशीन को अगर डेटा फीड करेंगे, इट विल बिकम इंटेलिजेंट। ये जो है ना, ये कह लें कि हाई लेवल एक एक्सपेक्टेशन है एआई की फील्ड से, हम किस तरह कंप्यूटर्स को जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग जो है वो इंटेलिजेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब इस फील्ड के अंदर आते हैं, तो इसकी फील्ड के अंदर एक सब डोमेन भी आते हैं जिसको हम कहते हैं डेटा साइंस, ठीक है, जिसके क्रॉस पर्टिकुलर फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अदर डोमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा काम होता है। तो ये जो है ना, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है। लाइक जिस तरह मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक अलग से कोर डोमेन एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसी तरह एआई या डेटा साइंस, दे आर नॉट कोर फील्ड्स, rather they are derived fields, ठीक है, जो ड्राइव होती हैं तीन डिफरेंट एलिमेंट से। पहला एलिमेंट ये है कि हम किस तरह डेटा को कलेक्ट और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पहला एलिमेंट है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो है वो ये है कि हम स्टोर डेटा को किस तरह लाइक एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड एलिमेंट है ये। फिर जो थर्ड फील्ड है डोमेन नॉलेज,
आज हम जिस डोमेन की बात कर रहे हैं वो है एग्रीकल्चर की। अब लेट्स सपोज अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं एग्रीकल्चर के बारे में, जो है अगर मैं अमजद साहब और मैं बैठे हो तो ही इज डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है। ही नोज कि यार एग्रीकल्चर के क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। नंबर वन चीज, एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो मोस्ट इम्पैक्टिंग प्रॉब्लम्स क्या है, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम जल्दी फिक्स कर लेंगे, ठीक है, तो हमें ज्यादा अच्छी रिटर्न आएगा विद इन एग्रीकल्चर फील्ड। ये सर अमजद बेहतर बता सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली कोई बैंकर होगा, अगर वो हम में से बैठा हो तो बैंकिंग की फील्ड में सर अमजद की निस्बत वो बंदा ज्यादा डोमेन एक्सपर्ट होगा, ठीक है, या कह लें उसके पास ज्यादा डोमेन नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये सर थर्ड चीज है डोमेन नॉलेज की। जब इन तीनों चीजों का मिक्सचर बनता है ना, तो तब हम कहते हैं कि यहाँ पे एआई या डेटा साइंस की फील्ड आती है, ठीक है। जिसमें हम ये करते हैं कि हम मशीन्स को प्योरली बेस्ड ऑन डेटा इंटेलिजेंट बनाते हैं, ठीक है, सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। मेरा प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमने एक एग्जांपल ली थी कि हम किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार लेट्स सपोज के जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक एरिया है, इसको मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर दूं और मैं प्रिडिक्ट कर सकूं डाउन द रोड, यार इन इन लेट्स सपोज 12 बॉक्सेस के अंदर से ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स या ये वाला जो स्क्वायर स्क्वायर मीटर है, इसके अंदर आने वाले 3 मंथ्स के अंदर जो है वो डिजीज लग जाएगी, ठीक है। नाउ दिस एप्लीकेशन कैन बी सॉल्व, ये कह लें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग डेटा साइंस, जिसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आज जो है वो मार्च है, ठीक है, तो जून से लेके जुलाई के महीने के अंदर ये दो बॉक्सेस, ये स्क्वायर मीटर्स जो है, ये दो स्क्वायर मीटर्स जो है ये इम्पैक्ट होंगे विद अ पर्टिकुलर डिजीज। उसको रिड्यूस या उसको मिटिगेट करने के लिए मैं और सर अमजद बैठ के आज से प्लान कर सकते हैं कि यार ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये जो दो स्क्वायर बॉक्सेस हैं ये इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो हमें आज से इसके बारे में कुछ स्प्रे करने की जरूरत है। सेकेंडली ये देखें कि अगर मुझे आज ये पता लग जाए तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि मैं पूरे कंप्लीट फील्ड पे स्प्रे करूं। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं खाली 2 स्क्वायर बॉक्सेस को स्प्रे करूं। मेरी जो कॉस्ट टू बाय पेस्टिसाइड्स है वो कह लें कि यहाँ पे 2/12 है, कह लें कि तकरीबन 1/6 टाइम्स या 2/12 टाइम्स जो है वो मैंने कॉस्ट स्प्रे दैट पर्टिकुलर फील्ड जो है कम कर दी है अगर मैं डेटा साइंस को यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें आगे चलें तो ये एक एग्जांपल है, हमारे साथ एक और ट्रेनर होते हैं डाइसनेटिक्स में जो S&P ग्लोबल में काम करते हैं, वो अक्सर जगह एग्जांपल देते हैं कि यार क्या ये सब कहानियां ही हैं, लाइक एआई या डेटा साइंस क्या कहानियां हैं, या शुड वी टेक देम सीरियस और नॉट, या हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। देखें कि ये एक बग्गी है, कह लें कि हॉर्स कॉड है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लेट्स सपोज हम सब फेमिलियर है इस चीज से। ये एक ना यूएस की एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि एक 1900 की पिक्चर है, एक 1913 की है, 13 ईयर्स का गैप है, ठीक है। सेम रोड के ऊपर जो है वो ओनली 1 कार है, सेम रोड है और इसके ऊपर जो है वो 0 हॉर्स कार्स है, ठीक है। इन 13 ईयर्स ऑफ टाइम, ठीक है, सेम रोड पे जो मूवमेंट थी ट्रैफिक की, लोगों की जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन थी, दे कंप्लीटली गॉट चेंज, ठीक है। ये जो है एक्सपेक्टेशन है इससे रिलेटेड। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके आगे चलूं, जो सेम ये चीजें है ना, ये कह लें कि जो मैंने इधर आपको एग्जांपल दी है, यही सेम चीजें जो है ना ये ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर हो रही हैं, ठीक है। और बात ये हो रही है कि किस तरह जो हम ह्यूमन ड्रिवन काम है उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट करने का पर्पज ये नहीं है कि हमने ह्यूमंस को रिप्लेस करना है, हमने ह्यूमंस को एफिशिएंट बनाना है। इस एफिशिएंसी के पीछे जो दो मेजर फील्ड्स फ्यूल अप कर रही हैं इन चीजों को, वो है आपकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और एक है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है एआई पे, किस तरह एआई को यूज करते हुए हम जितना भी कह लें कि रिपीटेशन वाला काम है उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, नंबर वन चीज। सेकेंडली, किस तरह एट द एंड ऑफ डे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम की, ठीक है। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया कि किस तरह कम पेस्टिसाइड यूज करते हुए हम जो है वो ज्यादा जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पानी की क्वांटिटी कम यूज करते हुए किस तरह हम जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या कह लें कि जिस तरह पेस्टिसाइड्स हैं उनको किल करने के लिए हमें इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम किस तरह कम पेस्टिसाइड्स को यूज करते हुए चीजें बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बात हो रही है इस एआई के क्रॉस, कि हम किस तरह एआई और डेटा साइंस के फील्ड को यूज करते हुए हम किस तरह किसी भी डोमेन, या अगर एग्रीकल्चर की भी डोमेन लें आप, किस तरह इसकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब जब हम आगे चलते हैं ना तो देखें, इट्स नॉट ओनली के हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा यार एआई आ रही है, एआई आ रही है, ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच शुड बी ओनली लाइक पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर टेक्निकल पीपल, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, या तो ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट, अब कोई बिजनेस भी चलाना हो ना तो तब भी यही सेम सिनेरियो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सेम सिनेरियो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेट्स सपोज क्या है कि अगर किसी भी बंदे का कोई रिज्यूमे है, कोई इसका प्रोफाइल है, कह लें, ठीक है, प्रोफाइल है या उसका कैरियर है, एक उसका है प्राइमरी स्किल सेट, वो मार्केटिंग का बंदा है, फाइनेंस का बंदा है, एचआर का बंदा है, सेल्स का बंदा है, वो एग्रीकल्चर डोमेन से है, ठीक है, कि वो किसी भी डोमेन से है। अब इसके अंदर अगर मैं आगे चलूं, ठीक है, तो आ, इसके साथ अब आहिस्ता आहिस्ता ना एक सेकेंडरी स्किल सेट पॉपअप होता जा रहा है, जिसकी बेस पे जो है ना वो चीजें जो है वो चेंज होती जा रही है। लाइक एरिया ऑफ कंपटीशन, किस तरह वर्ल्ड मूव फॉरवर्ड कर रही है, कम्प्लीटली चेंज होता जा रहा है। वो है डेटा साइंस या एआई का स्किल सेट, ठीक है। आप बेशक कोई इंडिविजुअल हैं, बेशक किसी बिजनेस से हैं, ठीक है, आपके के पास अगर कोई सेकेंडरी स्किल सेट जिसके अंदर डेटा साइंस या एआई नहीं है, आप डाउन द रोड विद इन फ्यू इयर्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, ठीक। अब अगर इसी एग्जांपल को आप सामने रखें नीदरलैंड को, जो हमने पहले एग्जांपल दी है, ठीक है, वर्सेस पाकिस्तान को, देखिए फर्क क्या है। नीदरलैंड वाले एग्जांपल, पाकिस्तान में फर्क क्या था, व्हाई दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, क्योंकि वो कर एग्रीकल्चर ही रहे हैं, बट इस एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने स्ट्रॉन्ग लिंक्स बनाए हैं अपनी सेकेंडरी स्किल सेट, ये कह लें कि सेकेंडरी कैपेबिलिटी है उसके साथ। वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वाया एआई, वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वाया रोबोटिक्स, ठीक है, वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वाया रिमोट सेंसिंग, ठीक है। दिस इज द वे जिस साइड पे वर्ल्ड मूव कर रही है, ठीक है। आप कोई बिजनेस ले लें, कोई डोमेन ले लें, ठीक है, डाउन द रोड अगर आपको कॉम्पिटिटिव होना है किसी भी डोमेन के अंदर, जब तक आप जो है वो अपना मेजर फोकस जो है या मेजर एग्जीक्यूशन वाया एआई या डेटा साइंस नहीं करेंगे, आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते। और इसकी एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल जो मैंने आपको दी कि नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान इन एग्रीकल्चर आप कंपेयर करें, द मेजर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज यू कैन से एआई, या जो है वो ऑटोमेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी बेस पे वो चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक तो ये आ गया ना कि ओवरऑल इकोसिस्टम को किस तरह हम कम्पिटिटिव बना सकते हैं यूजिंग एआई एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा पॉइंट ये है कि नॉट ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, डाउन द रोड स्किल सेट, अगर आप एग्रीकल्चर डोमेन से हैं, एक बंदा एक्स बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरी साइड पे एक बंदा वाई बैठा हुआ है, वो भी एग्रीकल्चर डोमेन से है, बट ही नोज एआई। यार मैं एआई से क्या क्या कर सकता हूँ, एआई के यूज केसेस क्या है, ठीक है, एआई से मैं वैल्यू क्या ड्राइव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वो बंदा जो है वो कहते हैं उसे बैठा होगा, तो वाई जो पर्सन है विल बी गेटिंग मोर मनी, मोर सैलरी एज कम्पेयर टू पर्सन एक्स, ठीक है। और ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, दिस इज रियलिटी, ठीक है। डेटा साइंस की डोमेन के लोग जो हैं वो लाइक कह लें कि दे आर हाईली पेड एज कम्पेयर टू अदर पीपल, यू कैन से दैट आफ्टर 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, जो डेटा साइंस की डोमेन का बंदा होता है वो यूजली 4 to 5 टाइम्स ज्यादा अर्न कर रहा होता है एज कम्पेयर टू
पर्सन जिसके पास डेटा साइंस का स्किल सेट नहीं है, ठीक है। नंबर वन चीज। दूसरा, इवन बिजनेस के क्रॉस के कोई भी बिजनेस है, कोई भी इकोसिस्टम है, अगर वो डेटा साइंस या एआई को यूज कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो एज कम्पेयर टू अदर डोमेन जो है वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि अच्छा जब हम बात करते हैं डेटा साइंस या एआई की, तो सीखे कैसे, ठीक है। क्योंकि कंसेप्शन तो सॉरी, जो एक कह लें कि एक मार्केट के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है कि यार ये तो खाली एआई के लोगों का काम है, ठीक है, और सॉरी कंप्यूटर साइंस के लोगों का काम है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इस चीज को हम अगर आगे लेके चलें तो देखिए सबसे पहले हम होता इशू क्या होता है कि हम जब बात करते हैं आपकी लर्निंग की, तो सबसे बेस्ट हमारा जो पार्टनर है वो आता है गूगल, ठीक है। हम गूगल पे जाते हैं, हम टाइप करते हैं चीजें और हम चीजें सर्च कर देते हैं। जब हम गूगल पे जाते हैं डिटेल में, तो हमारे पास जो है ना इस तरह मल्टीपल टूल्स आना शुरू हो जाते हैं। इन टूल्स को देख के हमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि फिर हमें अगला स्टेप ये आता है कि अच्छा यार ये जो क्या कह लें, जो लर्निंग ट्रैक है ये तो है ही खाली कंप्यूटर कोडिंग का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, तो ये शायद तो मेरे लिए है ही नहीं है, मुझे इस फील्ड के अंदर इंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही पॉइंट आपको क्लियर करना है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आप लोग एग्रीकल्चर डोमेन से हैं, ठीक है, यू कैन नॉट शट योर आईज फ्रॉम एआई, ठीक है, या एआई की रियलिटी से आप चीजें अपने आप को छुपा नहीं सकते, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, यू हैव टू लाइक मेक इट अ पार्ट ऑफ योर स्किल सेट, ठीक है। डाउन द रोड अगर आप ये नहीं करेंगे तो यू विल गेट ऑब्सोलीट इन मार्केट। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके पास प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, आप कंपटीशन में कहीं जॉब लेने जा रहे हैं, तो आपके कंपटीशन में लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको ये चीजें आती होंगी, ठीक है। तो आपने अपने आप को रेडी करना है। इस रेडीनेस के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो कोडिंग का आता है, ठीक है। इस चीज को क्लियर करने के लिए जो हमने फॉर एग्जांपल आज का जो सेशन प्लान किया था वो ये था कि अच्छा जी, जो है ना कि जब आप डेटा साइंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में जो बंदा डोमेन एक्सपर्ट होता है ना, या कह लें कि जो बंदा नॉन सीएस बैकग्राउंड से होता है, जिस तरह आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो हैं वो, उनका एक अपर हैंड होता है। अपर हैंड इसलिए होता है कि दे कैन लाइक easily track down the use cases of AI within their domain, ठीक है, and they can materialize those use cases quickly within their domain, ठीक है। आप बेशक सीएस बैकग्राउंड से हैं या आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, आपको ऑन डे वन जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो डे वन से स्टार्ट करते हैं, तो मैथ्स एंड स्टैट एक ऐसी चीज है जो आप बेशक आप एग्रीकल्चर डोमेन से हैं या कंप्यूटर डोमेन से हैं, आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आते हैं डोमेन नॉलेज पे। अगर आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, तो जो आईटी का बंदा है उसके पास ये चीज नहीं होगी डे वन से, बट आपके पास है जी ये है कि आपको एग्रीकल्चर की इन आउट पता है और एप्लीकेशन आपको एग्रीकल्चर की पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं, ये एग्रीकल्चर डोमेन काम किस तरह करती है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता होगा, ये सरमजद को ज्यादा बेहतर पता है, ठीक है। इसी तरह डोमेन या बिजनेस डोमेन नॉलेज जो उसके बाद कंप्यूटर आईटी स्किल्स, आईटी वाला बंदा इसमें रिलेटिवली बेहतर होगा, ठीक है, बट नॉन आईटी वाला बैकग्राउंड में बंदे को ये चीजें यहाँ पे चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब आप एआई की फील्ड के अंदर को सीखना शुरू करेंगे, तो डे वन पे आप लोगों की कंप्लाइंस या जो है आपकी रेडीनेस है वो 1/3 होगी, ठीक है। आपको मूव करना है 3/3 पे, आप बेशक किसी भी फील्ड से। तो ये जो जर्नी है एनी पर्सन वो सेम है बट जो एज है वो है बिजनेस नॉलेज या डोमेन नॉलेज। और डोमेन नॉलेज एक ऐसी चीज है, आईटी का जो नॉलेज है वो आपको 2 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जा सकता है, बट जो डोमेन नॉलेज है वो आपको कभी भी 2 या 4 दिन के अंदर नहीं सिखाया जा सकता। इट टेक्स years, it takes decades, ठीक है, टू ट्रांसलेट और टू अंडरस्टैंड द डोमेन, ठीक है। या कह लें कि एक डोमेन के ऑपरेशन सीखना, एक किसी भी एग्रीकल्चर लेट्स एग्रीकल्चर है तो उसके अंदर यील्ड वर्सेस लेट्स के सप्लाई एंड चेन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये 2 दिन की ट्रेनिंग से नहीं सीखा जा सकता, ठीक है। इट विल टेक years, इट विल टेक months टू अंडरस्टैंड टू बिल्ड सच कैपेबिलिटी। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि ओवरऑल इस रेस के अंदर डेटा साइंस की रेस के अंदर जो चीजें हैं वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल जब डे वन से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है सीएस वाले बंदे को जो
ठीक है, जब वो टूल सीख रहा होगा। बट जब एल्गोरिथम्स की अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का बंदा और सीएस का बंदा ये दोनों सेम पेज पे भाग रहे होंगे। बट जब डोमेन नॉलेज या उसके यूज केसेस की बारी आएगी, यहाँ पे दोबारा एग्रीकल्चर का बंदा क्या हो रहा होगा, फास्ट भाग रहा होगा। ठीक है, तो पॉइंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि नंबर वन चीज के ये जो ऐसी डोमेन है जिस डोमेन के अंदर आपको आना ही आना पड़ेगा, नंबर वन चीज। ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी। ठीक है, आपके वर्क को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब आपका काम ज्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, जस्ट अगेन की माइंड में दोबारा एग्जांपल ले आए, नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, एक्सपोर्ट ऑफ फूड का इंडेक्सेस या जो रैंकिंग है उसको देखें तो द ओनली फर्क डिफरेंस इज एफिशिएंसी। ठीक है, और वो एफिशिएंसी को ड्राइव कर रहे हैं यूजिंग एआई टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इस चीज को अगर हमने पाकिस्तान के अंदर लाना है तो हमें भी लाइक इररिस्पेक्टिव जिस मर्जी फील्ड से, एग्रीकल्चर के अंदर भी जिस मर्जी डोमेन से हैं, वी हैव टू लर्न वन थिंग। स्टिल हमारा मेन जो कह लें कि जो स्किल सेट होगा या जो हमारा मेन फोकस होगा वो एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, बट उस एग्रीकल्चर को करने के चेंज जो वेज हैं वो कन्वेंशनल से उठ के हमें एआई पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और एआई सीखने के लिए इट्स नॉट अ फील्ड जिसको हम फुली एसोसिएट करें सीएस या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के साथ। एनीवन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन डू डेटा साइंस। ठीक है, एआई। अच्छा, इसके आगे हम आगे चलते हैं। इसके आगे हम अभी तक हमने देखा कि डेटा साइंस या एआई क्या है हाई लेवल में। हम आगे चलते हैं कि इसके अंदर कोडिंग या टूल्स जिससे लोग हम ज्यादा घबराते हैं वो कहाँ पे आती है, उसका क्या लाइक चैलेंज है या हम उसको किस तरह जो है वो ओवर टैकल कर सकते हैं। तो देखिए, हम जो है फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ के अंदर ना डिसीजन कर रहे होते हैं। ठीक है, वो डिसीजन जो है ना वो डिसीजन लाइक इंफॉर्मेशन या नॉलेज या एक्सपीरियंस की बेस पे आ रहे होते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन नॉलेज एक्सपीरियंस है ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम मेंबर्स होते हैं ना वो लेके आते हैं। बट डाउन द रोड अब चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, इलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब डाउन द रोड चीजें चेंज हो रही हैं। चेंज किस तरह हो रही है कि अब कोशिश ये की जाती है हमने अगर कोई डिसीजन लेना है या हमने कोई एक्शन लेना है तो हम वो डेटा की बेस पे लें, क्योंकि वही नॉलेज या एक्सपीरियंस जो था अब वो एग्जिस्ट करता है हमारे पास डेटा की फॉर्म में। ठीक है, अब लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं अगर दूं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि अगर मेरे पास ये इंसाइट हो क्रॉप है। ठीक है, जब भी इसका टेम्परेचर जो है वो फॉर लेट्स सपोज 7 days consecutive जो है वो लेस देन 20 सेंटीग्रेड रहे। ठीक है, तो देर आर 90% चांसेस कि इसको वाई डिजीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन या तो कोई ह्यूमन लाएगा या फिर अगर हम ये करें हम उस फील्ड पे हम जो है वो सेकंड बाय सेकंड टेम्परेचर कैप्चर करना शुरू करें, उसको किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करना शुरू करें, साथ उसके जो 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 भी डिजीज लग रही हैं उसकी मैं ट्रैकिंग करना शुरू करूं। ठीक है, तो सेम इंफॉर्मेशन जो कि मुझे ह्यूमन प्रोवाइड कर रहा था ये सेम इंफॉर्मेशन मेरे पास डेटा के अंदर कैप्चर हो रही है। अब इमेजिन ये करें कि इस तरह की कितनी इनसाइट्स जो है वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करती होंगी। ठीक है, बट सेम इनसाइट हम जस्ट फॉर एग्जांपल अगर खाली टेम्परेचर का डेटा वर्सेस डिजीज का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दें तो हम कितनी इनसाइट ला सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक चीज ये हो सकती है कि अगर हम
जो है वो टेम्परेचर, दूसरी इनसाइड ये भी निकल सकती है कि लेट्स सपोज कंसेक्टिव 7 डेज के लिए टेम्परेचर जो है वो 47 डिग्री ग्रेड से ऊपर चला जाए, हमारी जो यील्ड है वो लेट्स सपोज 15% गिर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की कितनी इनसाइट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हम नहीं कर सकते। जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि अब टीम मेंबर्स के साथ जो पैरेलल में पिलर आता जा रहा है वो है डेटा का, कि डेटा इज समथिंग जिसकी बेस पे अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि यार डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है, चीजें चलेंगी, बट डेटा जो है ना वो एक की पिलर बनता जा रहा है। ठीक है, और मैंने अभी आपको एक एग्रीकल्चर की सिंपल सी एनवायरमेंट की एग्जांपल भी दी। और अब ये होगा कि फॉर एग्जांपल अब बात ये नहीं होती है कि हमने फॉर एग्जांपल मेरे पास 400 एकड़ है तो आज मेरा दिल किया तो मैंने स्प्रे कर दिया, या मैंने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है कि इस मंथ के अंदर ये स्प्रे होगा, इस मंथ के अंदर जो है ये खाद डलेगी, इस मंथ के अंदर ये पेस्टिसाइड का स्प्रे होगा। अब चीजें ऐसे नहीं चलती। ठीक है, चीजें वैसे चलती है कि यार मैंने कोई भी काम करने से पहले जो मैंने स्केड्यूल्ड है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, उसको अपने फैक्ट चेक ये कह लें कि नंबर से चेक करूंगा कि लास्ट ईयर अगर मैंने फॉर एग्जांपल फला 4 मेरे पास फील्ड थी, उन 4 फील्ड्स के अंदर से मैंने एक्स फील्ड के अंदर ये पेस्टिसाइड ट्राई किया, इसके अंदर ये पेस्टिसाइड ट्राई किया, इसके अंदर इस कंपनी का पेस्टिसाइड ट्राई किया। ठीक है, तो किसकी बेस पे जो है ना मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मेरी यील्ड बढ़ी, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर जो है जो बेस्ट पेस्टिसाइड है, ठीक है, जो बेस्ट इंसेक्ट किलर है उसको मैं ऑन बोर्ड ला सकूं और उस पे चीजों को ट्राई कर सकूं। ठीक है, ये एक और दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम इसमें आगे चलें, देखिए जो पॉइंट अगला क्लियर करना था कि इस एआई फील्ड या डेटा साइंस का फील्ड का पर्पस जो है वो ह्यूमंस की रिप्लेसमेंट नहीं है, वो डोमेन एक्सपर्ट्स की रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, द पॉइंट इज कि अगर कोई बंदा फार्मिंग करता है he will still remain a remain in farming। ठीक है, एआई की फील्ड, रोबोटिक्स की फील्ड फार्मर्स को चेंज करने नहीं आ रही या एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स को चेंज करने की नहीं आ रही। जो ये फील्ड है वो ये काम करी कि ह्यूमन ब्रेन जिसने फाइनल डिसीजन लेना है, जो कि फार्मिंग का काम करता है, हम किस तरह उसको सपोर्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, या कोई और एलिमेंट। ठीक है, द पॉइंट इज कि ओवरऑल आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस सारी चीज के अंदर से मिलता है कि ह्यूमन ब्रेन कांस्टेंट है, बाकी चीजें चेंज होती जा रही है, इवॉल्व जा रही है, ह्यूमन ब्रेन कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि अच्छा जब ये डेटा साइंस वाली के अंदर जब कंप्यूटर साइंस वाला बंदा आता है, ये प्रोग्रामिंग का एलिमेंट कहाँ से आता है। देखें, पॉइंट ये है कि लेट्स सपोज आपको से मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप में से कोई बंदा इसके अंदर से नंबर ऑफ नाइन्स काउंट कर सकता है कि कितने नाइन है। जस्ट गिव इट अ ट्राई कि इसके अंदर कितने नाइन है। कोई और? 13, 3 times or 4 times, 4 times. ठीक है, यहाँ से ये दरअसल नकवी लिखा डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर मैं जस्ट एक माइनर सी चेंज करूँ, इसके अंदर 9 हाईलाइट कर दूं, तो देखिए वही चीज, वही प्रॉब्लम जो है, सेम प्रॉब्लम तो कम टाइम के अंदर सॉल्व हो गया। ठीक है, और दूसरा ये है कि एरर कम हो गया, एरर मार्जिन कम हो गया। ठीक है, पहले हो सकता था कि लाइक 10 में से 8 लोग एक्यूरेटली जो है वो इस चीज को आंसर कर रहे हो। ठीक है, अब जो है वो 10 के 10 लोग जो है वो एक्यूरेट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन जो ह्यूमन ब्रेन्स का विजुअल एस्पेक्ट है, जैसे ही हमने उसको कह लें कि एक्सप्लॉइट किया है, उसको सपोर्ट किया है, तो प्रोडक्टिविटी भी आई, कम टाइम के अंदर चीजें भी सॉल्व हुई, और दूसरा ये कि आपका एरर जो है, एरर रेट भी कम हुआ। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई है। अब लेट्स सपोज एक और एग्जांपल है जिसके अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ कि 34/72। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं ये चलूं, तो इस इक्वेशन को अगर मैं आपको कहूं कि विदाउट यूजिंग एनी कॉपी पेंसिल सॉल्व करना है, तो यू नीड मोर टाइम टू सॉल्व दिस। ठीक है,
बट एज सुन एज आपको एक टूल मिला, एक कॉपी एंड पेंसिल की फॉर्म में, एक कैलकुलेटर की फॉर्म में, ये टाइम रिड्यूस हो गया, टाइम भी रिड्यूस हुआ, और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरर मार्जिन भी कम हो गया, ठीक है, एरर के चांसेस भी एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन हो गए हैं, ठीक है। तो अब जब हम बात करते हैं ना लाइक एआई की, डेटा साइंस की, ठीक है, उसमें अच्छा उसके बाद एक और छोटी सी एग्जांपल है कि अगर फॉर एग्जांपल यही इक्वेशन मैं आपको कॉपी पेंसिल दे दूं और मैं कहूं कि आपने 20,000 जो है ना वो एग्जांपल सॉल्व करनी है, ठीक है, अगेन इट विल बिकम टू डिफिकल्ट टू सॉल्व सच थिंग्स, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब आप बात करते हैं एआई या डेटा साइंस की, इसके अंदर जो सीएस का या आईटी का एलिमेंट है वो इतना है कि आपको एक टूल आना चाहिए, ठीक है, आपको एक टूल सीखना है जो कि आपको लेस टाइम के अंदर अ लॉट ऑफ डेटा प्रोसेस करके दे विद मिनिमम एरर रेट। तो ये जो डेटा साइंस एआई की फील्ड जो है ये क्या कहते हैं रेजोनेट करती है विद सीएस डोमेन। उसकी मेन रीजन ये है कि आपको वहां से एक टूल सीखना पड़ेगा, जो टूल आपको हेल्प करेगा, जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड के अंदर टेम्परेचर, उसको एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। तो बात ये होती है कि एट द एंड ऑफ डे कि हम किस तरह ह्यूमन विजुअल सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकें, उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है उसको हम जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकें यूजिंग अ पर्टिकुलर टूल, ठीक है, ये वैल्यू ऐड है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा, आगे मैं इसमें से कुछ चीजें स्किप करूंगा, तो होता ही है कि अब बात होती है जब हम एआई की बात करते हैं, हम कहते ये हैं कि हम कंप्यूटेशन पावर मशीन्स की यूज करें, एनालिटिकल कैपेबिलिटी या थिंकिंग पावर जो है वो ह्यूमन ब्रेन्स की यूज करें यूजिंग एल्गोरिथम्स, और हम एआई के अंदर मशीन्स को हाइब्रिड इंटेलिजेंट बना दें, ठीक है, बट उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है दैट शुड बी मच हायर एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्रेन्स। अब इसकी एक कैपेबिलिटी देखें कि एक साइड भी है कि अगर खाली ह्यूमंस पे मैं रिलाई करता, हो सकता था कि मैं ओनली 6 टाइम्स अ डे जो है ना वो टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकता, ठीक है। जैसे ही मैंने मशीन्स को एनेबल किया, एम्पावर किया, तो मैं हो सकता है पर मिली सेकेंड, ठीक है, मिलियंस ऑफ रीडिंग जो है वो एक फील्ड के अंदर से कैरी फॉरवर्ड कर लूं और रीड करना शुरू कर दूं, ठीक है। इन दोनों चीजों को, और सेकेंडली ये कि ह्यूमन कैपेबिलिटी इन 6 रोज को तो जो है वो एनालाइज कर सकती थी, ये 6 डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टेम्परेचर को एक फील्ड के अंदर तो एनालाइज कर सकती थी, बट जो मशीन्स हैं वो मिलियंस ऑफ इवेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एआई फील्ड के अंदर, ये डेटा साइंस फील्ड के अंदर हम जो काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, किस किस एल्गोरिथम के थ्रू ह्यूमन ब्रेन जो है वो डिसीजन मेकिंग करती है, ये कैपेबिलिटी हम यहाँ से लाएं, ठीक है, और बहुत सारे डेटा को, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदरिंग की कैपेबिलिटी, प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी मशीन की लाएं, और हम एक नई डोमेन के अंदर इंटर हो जिसके अंदर एआई है, ताकि हम एट द एंड ऑफ डे जो ह्यूमन, मतलब सर अमजद का टाइम जो है, लेट्स सर अमजद जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, इनका टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट मेरे लिए इसलिए नहीं है कि ये फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करें, ठीक है, इनका टाइम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है, इनका वैल्यू ऐड ये है कि जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल देखी, इनका टाइम इस तरह की इनसाइट निकालने के लिए मुझे चाहिए, ठीक है, ये टाइम इनके लिए मैं तब स्पेयर कर सकता हूँ, तब निकाल सकता हूँ जब मैं हेल्प लूंगा एआई या डेटा साइंस की, ठीक है। तब मुझे ये बताएंगे कि अच्छा यार लेट्स सपोज या सरमजद की वैल्यू तब बढ़ेगी जब सरमजद कहेंगे कि अच्छा यार तुम अगर फ्ला एक्सपर्ट के पास जाते हो तो हो सकता है तुम्हें जो है वो लेट्स सपोज 100 टन की यील्ड के लिए ना तुम्हें 1 मिलियन यूएसडी डॉलर लगाने पड़े, ठीक है। अगर आप मेरे से काम करवाते हैं, क्योंकि मैं डेटा साइंस के थ्रू काम करवाता हूँ या डेटा साइंस के थ्रू गाइडेंस देता हूँ, तो हो सकता है कि मैं आपको खाली 1 मिलियन डॉलर की बजाय सेम 1 लाख डॉलर आप लगाएं, मतलब 1/10 ऑफ कॉस्ट करें और सेम 100 टन की यील्ड ले लें, ठीक है।
ये काम डॉक्टर अमजद तब कर सकते हैं, सर अमजद तब कर सकेंगे जब इनको कोई सपोर्ट मिलेगी, और वो सपोर्ट जो है वो एआई या डेटा साइंस की फील्ड्स इनको देंगी। ठीक है, जो पॉइंट मैं दोबारा प्लेस कर रहा हूँ कि एआई या डेटा साइंस की फील्ड सर अमजद को रिप्लेस नहीं करने जा रहे, बट सर अमजद की प्रोडक्टिविटी या जो उनकी ह्यूमन ब्रेन का एसेट है उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये सारी डोमेन चलती है। ठीक है, और जो मैं आपको टूल की भी बात कर रहा था, जो टूल इसके अंदर हमने सीखना होता है डेटा साइंस या एआई के अंदर, उसका काम ये नहीं है कि हमें फॉर एग्जांपल कोडिंग आती हो तभी हम कर सकते हैं। पाइथन और आर इसके अंदर बहुत लाइक मेजर कहने के वेल नोन टूल्स हैं, बट इसके अलावा जो है वो नॉन टेक्निकल पीपल, ठीक है, या जो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स भी हैं जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल नाइम एक टूल है, ठीक है, रैपिड माइनर एक टूल है, ठीक है, जिस तरह ये पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है, ये फ्री है, ठीक है, ये फ्री है। आपको वो जो डेटा कलेक्शन, बहुत सारा डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको एनालाइज करने के लिए, उसको एक्शनेबल इनसाइट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कोई टूल सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो टूल जरूरी नहीं है कोडिंग का टूल हो, वो नॉन कोडिंग का भी टूल हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी रैपिड माइनर या नाइन के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हम आगे चलें तो अभी तक हमने यहाँ पे डेटा साइंस का जो है वो ये दो चीजें कवर की हैं। जो लास्ट पॉइंट है उसको भी मैं स्किम करूंगा। ठीक है, इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि डेटा साइंस का लाइफ साइकिल जो है ना, जो जिसकी बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है ना, ठीक है, अगर मैं आपको दूं तो जो बेस्ट और सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो आपको मैं दे सकता हूं। ट्रेन अ बेबी फॉर कार, ठीक है, या कह लें कि एक बेबी को मैंने टेस्ट सेंस सिखानी है। यार फॉर एग्जांपल कोई उसको फूड में देता हूँ, वो फूड जो है वो स्वीट है या सॉर है, ठीक है, कि वो मीठा है या खट्टा है। ठीक है, ये कहने कि बेबी को मैंने सिखाना है कि ये कार्ड जो है ये येलो है या रेड है। ठीक है, उस बेबी को ट्रेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई एक बेबी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर मैं उसे कार्ड करवा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मार्केट में जाऊंगा, मैं 200 कार्ड ले जाऊंगा, 100 कार्ड में ट्रेनिंग के लिए रखूंगा, 100 कार्ड में टेस्टिंग के लिए रखूंगा। अभी टेस्टिंग वाली चीज मैं बाद में बताता हूँ, बट ये कि मार्केट में 200 कार्ड लाऊंगा और मैं बेबी को ट्रेन करना शुरू कर दूंगा। उस ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, मैं जो हूँ एक कोई कार्ड सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, उस बेबी को वन बाय वन कार्ड दिखाऊंगा और बताऊंगा उसे कि यार ये रेड कलर का कार्ड है, इसकी विड्थ इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इस पे ये टेक्स्ट लिखा होता है, इस पे ये एक्स वाई जी फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनको देख के जो है ना मैं साथ उसको बताऊंगा, उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ कि यार ये रेड कलर है, ये येलो कलर है। ठीक है, इस तरह की चीजें मैं उसको वन बाय वन बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही चीज मैं 100 कार्ड्स के लिए रिपीट करूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो जब बेबी के लिए मैं ट्रेन कर लूंगा तो उसके बाद फिर टेस्टिंग की बारी आएगी। अगर आप शुरू में देखें तो यहाँ पे मैंने जो कार्ड लाया था उनको मैंने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया था। 100 कार्ड जो है वो ट्रेनिंग के लिए रख लिए थे, 100 कार्ड टेस्टिंग के रख लिए थे। टेस्टिंग वाले कार्ड इसलिए मैंने अलग किए थे कि जस्ट लाइक के बेबी को ट्रेन कर दिया मैंने, मैं अब उसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव मेरा सेम है, लाइक उसने रेड कलर या येलो कलर प्रेडिक्ट करना है, बट मैं उसको चीजें डिफरेंट, ये कहने कि अनसीन एनवायरनमेंट के अंदर उसकी एक्यूरेसी को चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमारी टेस्टिंग वाले फेज के अंदर आएंगी कि अब मैं कार्ड उसको दिखाऊंगा और आंसर मैं उससे पूछूंगा। ट्रेनिंग के फेज के अंदर मैं उससे बता रहा था, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ, अब उसका आंसर मैं वैलिडेट करूंगा और एट द एंड ऑफ डे उसको मैं डिप्लॉय कर दूंगा। ठीक है, तो जो एआई की फील्ड है, जो डेटा साइंस की फील्ड है, हम इसमें क्या करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि एक टूल के थ्रू मेरे पास जो बेबी है, जो मेरी मशीन्स हैं, उनको मैं ट्रेन करूं जो मुझे ये बता सकें कि यार इस फील्ड को या इस क्रॉप को ये डिजीज आने वाले 6 महीने के अंदर लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ये जो होती है ना, ये डेटा साइंस का लाइफ साइकिल है। ठीक है,
डेफिनेटली आज टाइम कम है, इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं जो जो होती हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये चीज़ें पड़ी हैं, आप उनको देख सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि एआई की फील्ड कुछ नहीं है जस्ट लाइक मोर देन ट्रेनिंग अ बेबी, जिसमें हम बेबी को सुपरवाइज करके ट्रेन करते हैं कि यार जब इस तरह की कंडीशन होगी तो तब ये डिसीज लगेगी, जब इस तरह की कंडीशन होगी तो ये डिसीज लगेगी। ये हम मॉडल बेबी को डेटा के बेस पे हम वन टाइम बता देते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम जब बेबी एक सर्टेन एक्यूरेसी से चीज़ों को डिसीजन लेना शुरू कर देता है, फिर वो अपने ऑन पे वो डिसीजन लेता रहेगा। ठीक है, तो अच्छा, अब टू लाइक गोइंग टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ दिस सेशन, काफ़ी चीज़ें हमने स्किप कर दी हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, यू कैन गो देयर एंड चेक। बट एक और Agriculture. केसेस हैं जो हम देख लेते हैं। तो पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि इन अपकमिंग ईयर्स, इन अपकमिंग डिकेड, ठीक है, एफिशिएंसी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी या एक्सपोनेंशियल प्रोडक्टिविटी पॉसिबल नहीं होगी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एआई एंड डेटा साइंस। ठीक है, द बेटर। और सेकेंडली, ये तो हो गया एक फील्ड रिस्पेक्टिव, और सेकेंडली मार्केट के अंदर हाईली पेड जॉब ढूंढना, ठीक है, विदाउट डेटा साइंस स्किल सेट या विदाउट एआई स्किल सेट ढूंढना मुश्किल होगा, ये भी रियलिटी होगी। बिजनेस के लिए मार्केट के अंदर सस्टेन करना मुश्किल होगा, इंडिविजुअल के लिए मार्केट के अंदर अच्छी या हाईली पेड जॉब ढूंढना विदाउट एआई मुश्किल होगा। ठीक, तो ये चीजें हैं जो जो आज की फील्ड से रिलेटेड है। अभी हम कुछ क्लोजिंग वीडियोस देखते हैं, इस एआई की फील्ड से रिलेटेड हम और क्या चीजें देख सकते हैं, क्या क्या यूज केसेस हैं, देन फिर हम आगे चलते हैं। Agriculture has always been a field which requires a lot of hard work and human supervision to complete even the smallest of tasks. It also requires a skilled eye, such as being able to recognize when crops are ready to be picked, or recognizing diseases in crops early, or even detecting insects, which can cause harm to certain crops. So it's safe to say that a lot of work is needed to increase productivity in this field. But this is where AI comes in. In 2050, the world's population will increase from 7.3 billion to 9.7 billion people on the planet, meaning food production must increase by a whopping 70%. The only way this can be achieved is through the help of AI. Let's take a look at how AI is being incorporated in agriculture to tackle these problems. Starting with in-field monitoring with computer vision. AI can be used to monitor the health and progress of crops in field. Pests are a major issue in agriculture, being one of the main sources of reduction in crops. Pests cause two problems in agriculture. The first is by causing damaging crops and food production. The second is indirect damage. Some insects are able to transmit bacterial, viral, or fungal infection to a crop, which can spread quite rapidly, resulting in major losses. This is where AI comes in. With the use of computer vision through drones, we are able to identify harmful pests in crops. Once identified, the drone will proceed to spray the crop with pesticides. With the use of computer vision, farmers will also be able to get notified when a disease is spotted. Early detection of diseases reduces the chance of spread and ensures better quality control. Computer vision is also used to check on crop readiness as well as check up on livestock. Livestock can be monitored 24/7 and checked for sicknesses or diseases, which can help farmers take action immediately when spotted. Computer vision can also be applied to the problem of soil diagnosis. Startups such as PEAT have developed an algorithm that can identify the strength and wellness of soil. The goal is to reduce the chances of growing underdeveloped crops while optimizing the potential for healthy crop production. Another application of AI in agriculture is predictive analytics. The current state of agriculture involves a lot of guesswork with farmers applying water and pesticides uniformly to crops. The issue with this is there may be some plants in need of pesticides or water. Other plants will not benefit from the additional water or pesticides. This causes a massive waste in both water and pesticides. But with the help of data-driven agriculture, farmers are able to utilize precision farming, which detects and identifies crops that require water or pesticides and provide it only to the plants that are in need of it. This asubstantially method will substantially reduce cost and wastage of water and pesticides. With the use of big data, we are able to use it as actionable insights, helping farmers make decisions in order to improve sustainability, efficiency, reduce costs, and increase profitability.
This consists of collecting data from soil sensors, GPS-equipped tractors, and other external sources such as local weather data. This allows farmers to drastically increase productivity while decreasing manpower. Autonomous robots. One of AI's major applications in agriculture is autonomous robots. Autonomous robots help increase productivity while allowing farmers to focus on more important aspects. Harvesting and picking is one of the most popular robotic applications in agriculture due to the accuracy and speed that robots can achieve to improve the size of yields and reduce waste from crops being left in the field. With the use of autonomous robots combined with computer vision, the machine will be able to identify the ripeness of the crops and pick based on a few merits such as readiness, disease-free, and many more criteria. So there you have it. It's safe to say that AI's applications in agriculture have come a long way and be needed to feed the world's growing population. Thanks for watching, and as always, don't forget to like, share, and subscribe. See you next time. Agriculture has always Agriculture in the United States is a more than $360 billion annual business. But it's in trouble. American farmers are getting older. Their average age is just over 58, and farming in general faces a major labor shortage. Errol Barnett met with some growers to see how they are trying to find a solution with the help of technology from Silicon Valley. He's at Hard Rock Hill Orchard in Mount Airy, Maryland. Errol, good morning. Good morning. Look, we know that farming is tough work. You've got to get up before dawn, and to take care of cows like these, you have to bring them through this milking machine twice a day. Now, generally speaking, though, this is just not the type of work people want to do anymore. It is becoming more difficult to find all sorts of agricultural labor. Now, farmers I met with recently told me that the key to fix that is artificial intelligence. Look at that bad boy. Yeah, there. Try it. It should be sweet. For just about 100 years, Wow. Gary Rishnotsky's family has been running the Wish Fruit Farm business. I think my grandfather, if he was alive, would be just totally mesmerized by what the future has turned into. In order to keep his crop healthy, he needs 600 people to harvest 600 acres every 2 to 3 days. But finding that amount of labor is becoming unsustainable. We've seen a shrinking labor force and an aging labor force. We actually had fields we were abandoning early in the season, which is a really painful thing for a grower to do. In an effort to avoid losing $20,000 per acre on abandoned fields, Gary partnered with a team of engineers who are working to fully automate the process. We've separated all of the things that a picker's doing into various pieces of the robot. Paul Bissett is the chief operating officer of the company behind it all. We're collecting 50 to 100 images of plant, and all of those images are fed into our AI system in order to tell us, okay, this is a good berry, this is one we want to go after. So you're telling me in real time, this machine is looking at the plant, thinking what to do next based on the imaging, and then executing that action? Exactly. So is this as fast as a human right now? This machine, commercialized, will replace the 30 people that you saw on the field earlier today with Gary. Strawberry farmers are so excited about this harvester, 2/3 of the industry invested more than $5 million into its development, all in hopes to replace the cost of human labor. Some would complain that machines and artificial intelligence are actually displacing people who want to have these jobs. So you're saying this actually fixes a problem you have. The workforce is not here. We've currently had to turn to guest worker visas to bring people in on a short-term basis to get the crop harvested. This is a global problem, the lack of farm labor. John Deere Combine Advisor. Farming mainstay John Deere has turned to autonomy and is expanding into Silicon Valley. It spent more than $300 million on a tech startup using drone imaging to reduce use of pesticides. The app of IDA helps me to keep track of my cows. And one Dutch company is using TensorFlow, Google's AI platform, to track dairy cow behavior. It's being tested in Augusta, Georgia by Richard Watson. It can determine just by her movements whether she is drinking, whether she's eating, whether she's lying down, standing up, walking. He hopes the app can give him a heads up if his 2,000 dairy cows are sick, even before they show symptoms. And alerted me to the fact that there is one animal that is in heat, which is she's ready to be bred,
and there are 3 animals that may have a potential health problem. Watson says the number of US dairy farmers dropped by 50% in the past 20 years, yet the number of dairy cows is the same. There you Back go. when it was 80 to 100 cows, the dairy farmer just about knew their animals by name, could tell you just about everything about them. We just can't do that now. What the technology enables you to do is become a more efficient, perhaps diagnose things quicker and treat things quicker. Google spokesman Justin Burr says the game changer here is the interpretation of the data. And it's figuring these things out day by day, week by week. The more amount of training data that it gets, the smarter it becomes. It learns the cows, it learns the farmers, and it's able to give more effective information. No technology is a silver bullet. The key question for food sustainability expert Danielle Nierenberg is how this new food tech will change things. It can't all be about profit. It has to be about the long-term viability of the food system and food security for everyone. Back in Florida, where commercialization of these AI bots is still years away, they say the consumer is the focus. How excited are you about what you're doing here? Yeah, I'm really excited. Somebody recently asked me what I wanted my legacy to be, and I answered, I said, I think I want it to be that I saved the U.S. strawberry industry. Now, Gary says without automation, you can expect to pay $100 for a bunch of strawberries during the off-peak winter season. And I have to show you this new baby calf born last night. Milk prices are relatively low right now, but Richard tells me any efficiency you add to the mix helps to keep those costs low. Gail? Wow, a new baby calf. That's so precious. Thank you very much. So we got a new prince and we have a new baby calf. Although I have always That's a new wondered. skill. I know that's a stand-up I've not seen before. I always wonder about how those baby calves and elephants, how they arrive in the world. I get it for everybody else, but 4 legs coming out just seems really complicated to me. And every So that's the overall session जो कि आज मैंने प्लान किया था सरमजीत के साथ, डिस्पाइट के टाइम कम था, बहुत सी चीज़ें जो हम मिस कर गए हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल और डिटेल में जानना चाहते हैं कि एआई के अंदर किस तरह चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जो मर्जी आपका गोल है, ठीक है, जस्ट आज के सेशन का जो पर्पस था वो ये था कि यार एवरीथिंग इज डूएबल इन एवरी फील्ड यूजिंग एआई, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। और सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसने चीज़ों को रिवोल्यूशनाइज करना है, ठीक है, और चीज़ें कम्प्लीटली चेंज होंगी। सो इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस कि हमें कितनी जल्दी इस चीज़ को अपने आप को इस चीज़ के लिए अनेबल करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोगों के माइक्स ओपन है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली, तो हम उनको आंसर करेंगे। अदरवाइज इट्स टाइम टू गुड बाय। क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन? अच्छा सर, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि किसी तरह की मैथमेटिक्स बैकग्राउंड या कंप्यूटर बैकग्राउंड, ठीक है, उसका होना ज़रूरी नहीं है। यस यस, उसका होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखें अब देखें आजकल आप किसी भी डोमेन से हो तो टूल्स, बेसिक लेवल के टूल्स से आप फॉर एग्जांपल आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक है, आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर भी इतना ही है कि फॉर एग्जांपल आप बस जो है वो डेटा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो देख सकें, चीज़ों को अकॉर्डिंगली देख सकें। सही हो गया। और इसके अलावा जो स्टैट के इश्यूज हैं, यानी कि वो सिंगल टूल स्टैटिस्टिक्स के लिए भी इक्वली इफेक्टिव है। हाँ, सिर्फ स्टैट्स और मैथ्स में भी कह रहा हूँ कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड इतनी चाहिए होगी कि फॉर एग्जांपल हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग हो। देखें फॉर एग्जांपल आप जिस तरह आपको शायद आपका पॉइंट ये है कि या आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि अच्छा आप डोमेन एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंटेशन अपने सिस्टम पे बैठ के करें, ठीक है, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी फील्ड के अंदर अगर एआई का ये यूज केस एनेबल करूंगा तो मैं प्रोडक्टिविटी 10 फोल्ड बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब उसकी स्केलेबिलिटी, उसके पीछे क्या बोर्ड डिजाइन होगा, क्या सॉफ्टवेयर बनेगा, किस तरह डिजाइन होगा, ठीक है, ये डिजाइन करना आपका काम नहीं है, ये फिर आप किसी आईटी वाले बंदे को कहेंगे जो करेगा, ठीक है, आपके बिहाफ पे। तो जो आप लोगों को डोमेन नॉलेज को एनेबल करने का पर्पज ये है कि यूज केसेस या एक्सपेरिमेंटेशन आप लोगों से बेहतर कोई नहीं कर सकता, और स्केलेबिलिटी जो है वो आईटी वाला बंदा हमेशा करता है। ठीक हो गया। यानी कि एक जो आपकी स्किल है, ठीक है, एक्स्ट्रा आएगी इससे। जी जी।
हाँ जी, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर मोस्टली हमारा स्टैट का डाटा है जिस तरह, ठीक हो गया। जी, जी। उसको एनालाइज़ करने का एक इश्यू आता है, तो ये आपका जो पैकेज आप बता रहे हैं मतलब इसका सॉफ्टवेयर, ठीक जी, है? जी। वो इक्वली गुड है जिस तरह पुराने हमारे कन्वेंशनल हैं, स्टैट को आप हल करने के एसपीएसएस लिए। आप एसपीएसएस से सॉल्व करें जी, कंप्लीट हमारे पास यही है ज़्यादा एसपीएसएस है या एक स्टैट पता नहीं 8 है या स्टेटा, जी, हाँ जी, वही है। ठीक है? तो देखिए उनसे बहुत बेहतर है लाइक नाइम, और क्योंकि उसके अंदर बेसिक स्टैट्स आते हैं, ठीक है? लाइक बेसिक स्टैट्स के बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, ठीक है? डेटा साइंस या एआई से रिलेटेड जो है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एसपीएसएस के अंदर बैठ के जो है वो ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल इमेजेस आ रही हैं तो इमेजेस के अंदर से आपने देख के डिटेक्ट करना है कि कौन से पौधे को डिजीज लगी है, कौन से पौधे को नहीं लगी। ये एसपीएसएस आपको हेल्प नहीं करता। नाइम के अंदर ये कैपेबिलिटी है। सही हो गया। अच्छा सर इसमें इमेजेस भी हैं, उसको हम डाटा में यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यस, अगर यस। कोई वीडियो या वॉइस है, उससे भी कोई इनसाइट ले सकते हैं या इस तरह यस, की है कोई? अच्छा, यस। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर कोई सेंसर लगे और आपने देखना है विंड से रिलेटेड, कोई कि विंड कितनी फास्ट चल रही है, ठीक है? या हो सकता है आपने लेट्स सपोज कोई रीड करना है, जिस तरह ज़ाहिर है एग्रीकल्चर पे आप ज़्यादा बेहतर एप्लीकेशन बता सकते हैं, बट लेट्स सपोज के नॉइस का एग्रीकल्चर यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है, जी, जी। ठीक है? ऐसे ही है। तो हुँ, अब ये चीज़ें अगर आपके पास ऑडियो क्लिप्स हैं तो, और साथ में आप यील्ड का डेटा है, तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है। मे बी पता लगता हो कि परिंदे ज़्यादा आने से हो सकता है किसी कोई ऐसा पौधा हो जिसके अंदर यील्ड कम हो जाती हो। सही हो गया। अच्छा सर कुछ लोग मतलब मैं ये कह लूँ या कोई भी स्टूडेंट्स अगर वो इसमें जंप इन करें एज़ अ लर्नर या फ्यूचर में उसको एज़ अ फ़ील्ड लेना चाहें, तो इसकी जी, फ़ील्ड जी। की क्या सैचुरेशन है ओवरऑल ज यानी कि डिमांड क्या है? इसमें थोड़ा-सा अगर आप बता दें। सर देखें, मैंने बताया कि जॉब जो है वो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको इस डोमेन के अंदर चीज़ों को पता है तो जॉब्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये कि मेन मसला आता है कि बहुत कम लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो मैंने पहले एक डायग्राम बताई थी ना, जी, जी। ये वाली, ठीक है? हाँ और जी। डेटा साइंस यहाँ पे आती है। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अच्छा मैं टूल सीख लूंगा ना, मुझे डेटा साइंस की जॉब मिल जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं सही है है। मार्केट में। मार्केट में होता है कि आपको टूल आता है, प्लस आपको जो है वो डोमेन नॉलेज भी कोई पता है। यानी कि फिर डोमेन से आपको मुराद जाके, यहाँ एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर का यस, आपको यस, पता है और ठीक यस, हो गया। ठीक है? आप एआई को एग्रीकल्चर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, फिर जाके रिटर्न या वैल्यू ऐड मिलता है। सही हो गया। अगर यानी मैं कि खाली हम फिर एल्गोरिदम, हाँ, जी, जी, अगर मैं एफिशिएंटली एल्गोरिदम कर से, पाएँगे। जी, जी, जी। सॉरी, पूछिए दोबारा, सॉरी। मैंने कहा इस तरह की यानी कि एक एक्स्ट्रा जब स्किल आ जाएगी तो हम अपनी डोमेन यानी कि एग्रीकल्चर को और ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएँगे। उसके अंदर एक यस, वैल्यू यस, ऐड हो जाएगी। यस, यस। फिर देखिए, फिर आपको ये होगा कि आपकी साइड फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में एक बंदा है जिसको खाली हेलो, एग्रीकल्चर आती है, और एक बंदा आता है जिसको एग्रीकल्चर वाया डेटा साइंस करनी आती है, तो डेफिनेटली वर्थ दूसरे वाले की ज़्यादा होगी। सही हो गया। तो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज़ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फ़ील फ्री। माइक सबके अनम्यूटेड है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपका जो डाइस का प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप कोई जैसे ट्रेनिंग या कोई कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स या वो कुछ तरह का कुछ प्रोवाइड करते हैं? सर ट्रेनिंग्स तो हम करते हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च जो है वो भी अगर फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हम वैसे तो क्योंकि कंसल्टेंसी में भी, जो क्योंकि जो मैंने एक इशू एनालाइज किया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये बायोटेक और एग्रीकल्चर का थोड़ा सा बैकग्राउंड था जी, डिग्री जी, वाइज, और थोड़ा सा मैंने अपने तौर पे जैसा ये पाइथन एंड थोड़ा सा कंप्यूटेशनल सीखना शुरू किया था। लाइक जी, जी, उसमें ये यूज के इशू ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक टूल या कोई डाटा एनालिसिस का कोई टूल एक सीख भी लेते हैं, तो जी, जी, वो एक तो नंबर वन थिंग है कंप्यूटेशनल नॉलेज सीखने में और उसकी लॉजिक बिल्डिंग में, तो वो तो बहुत टाइम लगता है। जी, जी, एंड देन अगर एक टूल पे हम थोड़ा काम भी कर लेते हैं तो देन जितना टाइम हम लगा के वो फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा कंप्यूटेशनल या टूल बिल्डिंग या डाटा एनालिसिस को थोड़ा सा कर रहे होते हैं डीप डाइव करके, तो जी, जब जी, हम उसका प्रैक्टिकल यूज केस में जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने वाली साइड पे, वहाँ पे वो उसका कोई ऐसी कोई हमें प्रैक्टिकल उसको वो मिलता ही नहीं है कि जहाँ पे हम उसको अप्लाई कर सकें और यूज कर सकें। तो
मेरी उसमें ये कंसर्न था कि लाइक ये जो होता है ये बेसिकली ये होता है कि कोलैबोरेटिव लाइक एक जगह बैठ के कुछ 4-5 बंदों की इंटीग्रेटेड टीम काम कर रही हो एंड देन जिसमें सारे इनपुट अपना दे रहे हो, तो इस तरह का कोई लाइक कोई है प्लान इन फ्यूचर या कोई इस तरह का आपका कोलैबोरेटिव सर देखें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लाइक साथ या कुछ? हाँ सर देखिए लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि मतलब अ, अ, हम एरिड यूनिवर्सिटी ठीक है और डाइस को एक सिनेरियो सिमुलेट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक्सपर्टीज हैं कि लाइक एआई को रियलिटी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप इस डोमेन के एक्सपर्ट हैं बायोटेक के, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहला स्टेप ये कि समहाउ मैं आपको इस लेवल तक ले जाऊं कि सर देखें अगर बायोटेक का आपका ये इश्यूज आप कन्वेंशनली इस तरह सॉल्व कर रहे थे, अगर डेटा साइंस का ये एल्गोरिदम ठीक है इस तरह का डेटा करेंगे तो इस तरह सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल है कि एक एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट आ गए। अब जो आप बात कर रहे हैं ना वो स्केलेबिलिटी की या इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि उस जो आउटकम आई है रिसर्च की उसको हमने रेप्लिकेट करना है इन रियल फील्ड, ठीक। अब बात आती है स्केलेबिलिटी की या प्रोडक्शनाइजेशन। अब यहाँ पे अगेन हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि ठीक है ये लेट्स सपोज ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी, इसके लिए हमारे पास इतने फंड थे, ठीक है। हमने कंप्यूटर विजन के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया कि यार हम जो है ना वो फील्ड्स के अंदर ना डिजीजेस डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कैमरास, ठीक है। तो हम एक छोटी सी फील्ड पे आपके साथ बैठ के एक्सपेरिमेंटेशन कर लेंगे, फिर बेस्ड ऑन फंड्स वी कैन हेल्प यू टू स्केल इट अप एज अ सोल्यूशन एट योर एंड, ठीक है, एज अ सर्विस एट योर एंड, या जिस तरह भी आप चाहें तो हम उस तरह का भी अरेंजमेंट बना सकते सही, हैं, ठीक। ठीक है। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन जो आंसर कर दिया होगा। जी, जी, जी। और कोई क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? सेशन सरंजन रैप अप करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग इस सेशन की मैं आपको शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो फिर आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। बट डेटा साइंस से रिलेटेड डाइस एनालिटिक्स वेबसाइट पे और बहुत से सेशन है, प्लीज गो देयर एंड वॉच, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव क्या डेटा साइंस के अंदर कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत से टूल है जिसके थ्रू आप फुल फ्लैज एक्सपेरिमेंटेशन अपने सिस्टम पे बैठ के कर सकते हैं, और डाउन द रोड फिर स्केलेबिलिटी के लिए फिर डिफरेंट ट्रैक्स हैं, उनको भी हम डाउन द रोड डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी एवरीवन, टेक केयर। आई होप मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा, एंड एंजॉय योर जर्नी जी टुवर्ड्स सर। एआई। सर शुक्रिया आपका कि आप हमारी इनविटेशन पे आपने वेबिनार के लिए टाइम निकाला। मैं अपनी तरफ से और डिपार्टमेंटल सतह पे आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो डेफिनेटली बंदा जब नई डोमेन में एक दफ़ा देखता है तो नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग मी द लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।